My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing CAT previous year questions from the topic of time and work. Let us start the session. So first question, the amount of job that Amal, Sunil and Kamal can individually do in a day are in harmonic progression. The Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job. If Amal and Sunil work for 4 days and 9 days respectively, Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone क्या होगा? So Amal, Sunil and Kamal, A, S and K, can do in a day the amount of job is in harmonic progression. तो amount of job they are doing in a day क्या होगा? That will be efficiency. The efficiency is in harmonic progression. Work is not, number of days is not. Efficiency is in harmonic progression. And Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job. The number of days taken by Kamal is double that of Amal. Number of days taken by Kamal is double that of Amal. तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या है 1:2 आ जाएगा फॉर अमल एंड कमल. और अगर डेज का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि एफिशिएंसी विच इज वर्क पर डे दैट विल बी 2:1 फॉर अमल एंड कमल. क्या है पार्ट क्लियर है? एंड वी नो कि नंबर ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ डे, एफिशिएंसी इन अ डे इज इन HP. सो 2 वैल्यू है अमल के लिए, 1 है फॉर कमल. तो सुनील के लिए वैल्यू क्या होगा? हार्मोनिक मीन is 2AB upon A plus B. If two values are A and B, so this value will be 2 into 1 divided by 2 plus 1. So that will be 4/3. 4/3 वैल्यू आ जाएगा. तो एफिशिएंसी का हमारा रेशियो आ गया 2:4/3:1. और टू मेक इट मोर सिंपलर 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो एफिशिएंसीज का जो फाइनल रेशियो है हमारा 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारी एफिशिएंसी हमारी इंटीजर में आ जाए. दिस विल बी 6:4:3 for Amal, Sunil and Kamal. So Amal can do 6 units of work per day, Sunil can do 4 units of work per day and Kamal can do 3 units of work per day. Then question is saying Amal and Sunil work for 4 days and 9 days. So time taken by Amal is 4 days, that by Sunil is 9 days, and then Kamal needs still 16 days to finish the remaining job. Okay, total work यहाँ से निकाल सकते हैं. So 6 into 4 24 work was done by Amal, 4 into 9 36 work was done by Sunil, and 3 into 16 48 work was done by Kamal. Total work हो गया 48 plus 36, that is 84 plus 24 108. So this is total work 108 units. Then question asking number of days Sunil will take to finish the job working alone. So time taken by Sunil will be equal to 108 divided by efficiency of Sunil, which is 4. 27 days will be the answer. 27 days will be the answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है. Additionally, we can also understand that if efficiencies are in HP, are in harmonic progression, and since efficiency into time, this is equal to work. So if work is constant, तो efficiency is 1 by time के proportional होगा. तो अगर efficiency harmonic progression में है तो time will be in AP. Time will be in arithmetic progression, isn't it so? And if that is so, so Amal, Sunil and Kamal के केस में number of days is given that Kamal is taking twice as much time as Amal. तो time का रेशियो आ रहा है for Kamal this is double the time. और time अगर हमारा AP में है तो सुनील के लिए वैल्यू क्या होगा? That will be 1 plus 2 divided by 2, एवरेज होगा 1.5. तो टाइम का रेशियो आएगा 1:1.5:2. और एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम विल बी 3. ठीक है, तो एफिशिएंसी यहां से हम वैल्यू निकाल पाएंगे, isn't it so? ठीक है, एलसीएम अगर मैं 3 एज्यूम कर लिया तो एफिशिएंसी का रेशियो हमारा आ जाएगा 3:2:1.5. आगे का प्रोसेस सेम है कि मल्टीप्लाई कर दो 2 से, चीजें सिंपलर हो जाएंगी. सो दिस विल बी 6:4:3 फॉर अमल, सुनील एंड कमल द एफिशिएंसीज, and accordingly you will solve. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है,
और यहाँ पे तुम क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे कि नंबर ऑफ डेज बाई टेकन बाई सुनील, ये क्वेश्चन हमसे अल्टीमेटली पूछ रहा है. सो वी नो कि इफ अमल, सुनील एंड कमल आर वर्किंग, अमल इज वर्किंग फॉर 4 डेज, सुनील वर्क कर रहा है 9 डेज का, एंड कमल इज वर्किंग फॉर 16 डेज. ओके, अमल्स वर्क ऑफ 1 डे इज इक्वल टू सुनील्स वर्क ऑफ 1.5 डेज. सुनील्स वर्क ऑफ 1.5 डेज, यानी कि अमल अगर 4 डेज वर्क कर रहा है तो दैट वर्क इज एज गुड एज सुनील्स वर्क ऑफ 4 into 1.5 विच इज 6 डेज का. सिमिलरली कमल्स वर्क ऑफ 2 डेज इज इक्वल टू सुनील्स वर्क ऑफ 1.5 डेज. कमल का 2 डेज का वर्क सुनील के 1.5 डेज के बराबर है, इजंट इट सो? या फिर कह सकते हैं कि कमल का 1 डे का वर्क सुनील के 1.5/2 यानी 3/4 डेज के वर्क के बराबर है. सो 16 डेज का वर्क इज इक्वल टू 16 into 3/4, 12 days. So total number of days required by Sunil will be 9 plus 6 plus 12, that is 27. Answer will be 27 days. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे और हमारी अप्रोच पे. हमारा अप्रोच उसके अकॉर्डिंग हम मोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कन्वेंशनल तरीका तो ऐसे तो सॉल्व कर ही सकते हो. ओके, ठीक है, समझ पा रहे हो? आई बिलीव समझ पा रहे होगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब इसको समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. पाइप्स ए एंड सी आर फिल पाइप्स while pipe B is a drain pipe. So A and C are doing positive work because they are filling the tank while pipe B is draining the tank. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank. So let us say pipe A is filling the empty tank in T hours. Okay. So pipe B will be emptying the tank in T minus 1 hours, 1 hour less. When pipes A, B and C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. So A, B and C working together, they are taking 2 hours का time. Okay. Pipe B and C are turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour. So for 1 hour, pipe B and C both are working. And after 1 hour, pipe C takes another, यानी कि extra 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank. यानी कि pipe C is working extra for 1 hour 15 minutes. Okay, so total work done कितना हो गया in this case? Pipe B is working for 1 hour, तो 1 hour का work of B 1B plus pipe C is working in total 1 hour plus 1 hour 15 minutes यानी 2 hour 15 minutes which will be 9/4 hours. तो B plus 9/4 times C, this is total work. Okay, क्या ये पार्ट क्लियर है? और क्वेश्चन से पूछा if pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, पाइप A को लग रहा है T hours और this is saying that less than 5 hours, तो T is less than 5, तो T minus 1 will be less than 4. Then time taken by pipe C to fill the tank क्या होगा? What would be the time taken by pipe C to fill the empty tank? Okay, so that is the question. Solve करते हैं. So can we take LCM of these time का values? ले तो सकते हैं, वैल्यू थोड़ा टिपिकल आएगा बट आने दो. तो T is time taken by A, T minus 1 is time taken by B and 2 is time taken by A plus B plus C. So we can take LCM of these values. So 2 into T minus 1. This becomes total work done. Okay, this becomes our total work done. क्या बात क्लियर है? बिकॉज और कोई अप्रोच नहीं है इसको इजीली ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, और कोई वैल्यू ले नहीं सकते बिकॉज वैल्यूज अननोन है हमारी सारी की सारी. ठीक है, सो कुछ भी रैंडम वैल्यू तो मान नहीं सकते. तो 2 into T minus 1 एंड इन दैट केस T टाइम लग रहा है A को, सो एफिशिएंसी ऑफ A विल बी 2 into T minus 1. बेसिकली वर्क डिवाइड बाई टाइम. फॉर B एफिशिएंसी हो जाएगा 2T T minus 1 डिवाइड बाई T minus 1, बट क्योंकि B नेगेटिव वर्क कर रहा है सो एफिशिएंसी विल बी -2T. वेरी इंपॉर्टेंट, -2T एफिशिएंसी होगी. और A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? दैट विल बी T into T minus 1. यहां से वी कैन फाइंड आउट C का एफिशिएंसी. C की एफिशिएंसी क्या होगा इस केस में? A की एफिशिएंसी है 2 into T minus 1, B की है -2T और टोटल एफिशिएंसी है T into T minus 1. तो एफिशिएंसी ऑफ C विल बी टोटल एफिशिएंसी T into T minus 1 माइनस A की एफिशिएंसी विच इज 2 into T minus 1 माइनस B की एफिशिएंसी विच विल बी -2T. सो T स्क्वायर माइनस T माइनस 2T प्लस 2 प्लस 2T. तो 2T कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी T स्क्वायर माइनस T प्लस 2. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ C. ओके, नाउ वर्क, total work is this value, work of B for 1 hour and 9/4 times work of C, या 9/4 times efficiency of C.
ओके, सो टोटल वर्क हमें पता है ये वैल्यू है, इक्वेशन बन जाएगा इससे. सो दैट वे 2t इंटू टी माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 9/4 टाइम्स c का वर्क यानी 9/4 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 और प्लस b का 1 का वर्क विच इज माइनस 2t. तो ये वैल्यू आ गया. ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली 2t स्क्वायर माइनस 2t. तो इसको 2t स्क्वायर माइनस 2t लिख दो, बिकॉज देन माइनस 2t विल गेट कैंसल्ड आउट. ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 18. 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 18. 8t स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, सो दिस विल बिकम t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 18. ओके, t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 0. सो t माइनस 3 into t minus 6 is equal to 0. So t can be equal to 3 or 6. Two values are possible for t. Either it will be 3 or it will be 6. Isn't it so? Clear hai? And since t has to be less than 5, so t cannot be equal to 6. So t must be equal to 3. But हमारा आंसर तो 3 नहीं हो सकता. 3 यानी कि 3 hours है hours में. ठीक है, सो हमारा आंसर तो 3 नहीं होगा बिकॉज ये टाइम है फॉर a. सो a is taking 3 hours का टाइम इन फिलिंग अप द टैंक. हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, सी के लिए वैल्यू चाहिए. तो दिस वैल्यू विल बी, एफिशिएंसी की वैल्यू तो आ रही है यहां से टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 से. तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 पे पुट कर दो. एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2. सो 9 माइनस 3 6 प्लस 2 8. एफिशिएंसी ऑफ सी इज 8. तो टाइम टेकन बाई सी विल बी इक्वल टू वर्क कितना है 2 इंटू टी माइनस 1 यानी 2 इंटू 3 into 2 that divided by 8. So this becomes 3/2 hours. Time taken by C is equal to 3/2 hours, which is equal to 90 minutes. Answer will be option B, 90 minutes. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 90 minutes in this case. Okay, clear है? And this is how this question was supposed to be done. So basically this question was definitely not the question that you should have done in the first go. Even if तुमने स्टार्ट कर दिया होता तो भी इसको बात के लिए रखना चाहिए था, बिकॉज इसमें एरर होने का भी स्कोप है, गलती होने का भी स्कोप है. समझ में कहीं पे फंस गए, अटक जाओगे तो टाइम ज़्यादा खराब कर दोगे. तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज. हाँ, ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं, बट इवन देन दिस क्वेश्चन वोंट बी इजी. ऑप्शन से भी ट्राई कर लेते हैं, बट इवन देन द क्वेश्चन विल नॉट बी अ केक वॉक. ओके, ट्राई करते हैं ऑप्शन से. So conditions are simple, that A is taking t hours, which is less than 5. B is taking t minus 1 hours, which is less than 4. And total work done is B का work of 1 hour plus 9/4 hours का work of C. Okay. Now, हमें given information क्या है options में, that is time taken by C to fill the empty tank. Okay. So we can start with 120. ठीक है, 120 से स्टार्ट करते हैं. तो इफ C is taking total 2 hours का टाइम in filling the tank and C is actually working for 2 hours 15 minutes, तो why is C working for 2 hours 15 minutes when it can fill in 120 minutes or in 2 hours? ठीक है, if it can fill in 120 minutes or 2 hours, then why is it taking 9/4 hours? एक सेकेंड, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज मिनट में दिया है तो यहाँ पे भी हम मिनट में ही मान लेते हैं चीज़ों को. दैट विल बी इजी. ठीक है, मिनट्स में ही मान लेते हैं. सो अगर मिनट्स में ही मानेंगे, सो इन दैट केस 60 मिनट्स का वर्क ऑफ बी प्लस 135 मिनट्स का वर्क ऑफ सी, दैट इज देयर. ठीक है, दिस वैल्यूज आर इन मिनट्स. अब 120 मिनट्स में सी कैन फिल द टैंक, तो 130 मिनट्स सी इज वर्किंग, यानी कि 120 मिनट्स में सी इज फिलिंग द टैंक. Additionally, extra C is working for 15 minutes while B is working for 60 minutes. So basically, this extra work is because of B. Because B is doing negative work. C जो extra work कर रहा है, this is only because of B. ठीक है, so 15 minutes में C कितना वर्क करेगा 1/8, because 120 फुल कर रहा है,
50 मिनट्स में करेगा 1/8, तो 60 मिनट्स में बी इज डूइंग 1/8 नेगेटिव वर्क, तभी तो कंपनसेट होगा। 1/8 माइनस 1/8 0 हो जाएगा और इफेक्टिव वर्क होगा 120। क्या है, क्लियर है? तो यानी कि डेफिनेटली -1/8 वर्क इज बीइंग डन बाय बी इन 60 मिनट्स और 1 आवर। तो अगर 1 आवर में -1/8 कर रहा है, यानी कि 1/8 टैंक को फिल एम्प्टी कर रहा है बी, तो 8 आवर्स में कंप्लीट टैंक को एम्प्टी करेगा। बट हमारा कंडीशन क्या है, 8 आवर्स में एम्प्टी करेगा बी कंप्लीट टैंक, बट हमारा कंडीशन है दैट दिस t-1 शुड बी लेस देन 4, टाइम टेकन बाय बी शुड बी लेस देन 4। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, 120 कैन नॉट बी द आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, 90 को ले लेते हैं ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। सो इफ यू आर टेकिंग दैट, एज्यूमिंग दैट सी इज टेकिंग 90 मिनट्स का टाइम इन फिलिंग द टैंक, 90 मिनट्स में तो सी फिल कर देगा, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है 45 का, बिकॉज बी इज वर्किंग। तो इन 45 मिनट्स सी विल बी फिलिंग 1/2, हाफ द टैंक फिल करेगा, और 60 मिनट्स में देन डेफिनेटली बी मस्ट बी एम्प्टीइंग हाफ द टैंक। तो अगर बी अगर हाफ द टैंक को एम्प्टी कर रहा है इन 60 मिनट्स, दैट इंप्लाइज कि टाइम टेकन बाय बी कितना है, 2 आवर्स इन एम्प्टीइंग द टैंक। और अगर बी इज टेकिंग 2 आवर्स का टाइम इन एम्प्टीइंग द टैंक, देन ए मस्ट बी टेकिंग 3 आवर्स का टाइम इन फिलिंग द टैंक, और सी का टाइम तो हमें पता ही है, दैट इज 1.5 आवर। एलसीएम ले लो, बिकॉज यहां पे हमारी कंडीशन मीट हो रही है दोनों। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 3, 2 और 1.5 का एलसीएम आ जाएगा हमारा, 6 ले लेते हैं। तो अगर 6 एलसीएम ले लेंगे, ए का वर्क इज 2 यूनिट्स, एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स, और सी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट्स। बट बी की एफिशिएंसी -3 होगी बिकॉज बी नेगेटिव वर्क कर रहा है। टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 4 + 2 6 -3 यानी कि +3। तो यस, 2 आवर्स में दे विल बी फिलिंग द टैंक। एडिशनल कंडीशन ये भी था ना, ये मिस कर गया था लिखना है यहाँ पे, ए + B + C आर फिलिंग द टैंक इन 2 आवर्स। यस, दिस कंडीशन इज बीइंग मेट, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या है, क्लियर है? अगर ये भी मैच नहीं करते तो फिर एक और ऑप्शन ट्राई करते। देखो, ध्यान ये रखना है कि अगर थर्ड ऑप्शन तुम ट्राई करोगे तो थर्ड ऑप्शन या तो आंसर होगा, अदरवाइज फॉर श्योर फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है इन सब चीजों में, और कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे वहां पे होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन भी होगा। तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, बिकॉज यहाँ पे अननोन मान के और ये मेथड से करना, दैट इज ऑल्सो टेकिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Rahul, Rakshita and Gurmeet working together would have taken more than 7 days to finish the job. On the other hand, Rahul and Gurmeet working together would have taken less than 15 days to finish the job. However, they all worked together for 6 days, followed by Rakshita, who worked alone for 3 more days to finish the job. If Rakshita had worked alone on the job, the number of days she would have taken to finish the job cannot be. This is a very, very good question. So, if you've not attempted this question, then make sure to first pause and try to solve this question, then only watch the solution. पहले एक बार अपने एंड पे सॉल्व करने का ट्राई करो, देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन। ठीक है, आई बिलीव कि तुमने ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ राहुल, रक्षिता एंड गुरमीत आर वर्किंग टुगेदर, दे वुड हैव टेकन मोर देन 7 days टू फिनिश द जॉब। इफ इंस्टेड राहुल एंड गुरमीत वर्क टुगेदर फॉर द जॉब, then they would have taken less than 15 days. However, it is given that in actuality, in actual condition, they all work together for 6 days and then Rakshita worked for 3 more days to finish the job. ठीक है, so there are 3 things. First is Rahul plus Rakshita, because सबके नाम R से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 के नाम R से स्टार्ट हो रहे हैं, तो RAH plus RAK, ठीक है, प्लस गुरमीत. So they are taking more than 7 days to finish the work. While if Rahul and Gurmeet were only working, then they would have taken less than 15 days. And actual work is equal to 6 days का work of Rahul plus Rakshita plus Gurmeet plus 3 days का work of Rakshita. यही तो है, ठीक है. So we need to find out कि if Rakshita had worked alone on the job, then number of days she would have taken to finish the job cannot be. Very important, cannot be. क्या नहीं हो सकता है. जब भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे क्या नहीं हो सकता है, so that implies कि there is a range जहां पे कि आंसर हमारा छुपा है, जिस रेंज में कि आंसर इज परमिसिबल, अलाउड है. Isn't it? So there are more than one answers, because हमसे क्वेश्चन पूछा क्या आंसर नहीं हो सकता है. So in that case एक रेंज है जहां पे कि आंसर आर अलाउड. So for example, let us say कि 10 days में रक्षिता cannot complete the work.
20 डेज में रक्षिता कैन नॉट कंप्लीट द वर्क, तो बीच का जो रेंज होगा फ्रॉम 11 to 19, दैट कैन बी पॉसिबल आंसर्स, isn't it so? So our actual answer, because cannot be आंसर पूछा है, cannot be पूछा है, so cannot be will always be extreme value. Extreme value, either it will be the lowest value or the highest value, because हमारा आंसर एक ही आंसर हो सकता है. So either it will be the lowest value or it will be the highest value. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. कैन नॉट बी, अगर क्वेश्चन पूछता कैन बी तो कुछ भी हो सकता था, बट कैन नॉट बी में डेफिनेटली हमारा एक्सट्रीम आंसर होगा, दैट इज फॉर श्योर. और अगर एक्सट्रीम आंसर होगा तो बीच की वैल्यूज को हमें पहले ही रिमूव कर देना है, बीच की वैल्यूज को पहले ही रिमूव कर देना है. यानी कि क्या क्या आंसर्स नहीं हो सकते अपने, 17 एंड 16 कैन नॉट बी द आंसर, सॉरी 17 कैन नॉट बी द आंसर एंड 20 कैन नॉट बी द आंसर. 16 और 21 में से कोई एक होगा, बिकॉज 16 इज मिनिमम, 21 इज मैक्सिमम. सो इनमें से कोई एक आंसर होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? और अब हम ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे. ओके अब हम ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे. क्या क्लियर है? ठीक है, तो ट्राई करते हैं ऑप्शन से. 21 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमें देखना है फॉर रक्षिता, और गिवन टाइम हमें रक्षिता के लिए है, और रक्षिता इज वर्किंग फॉर 3 डेज. तो 21 में कैलकुलेशन इजी लगता है, बिकॉज 3/21 वर्क रिटर्न करेगी. इफ रक्षिता इज वर्किंग फॉर 3 डेज एंड 21 डेज में शी कैन कंप्लीट द वर्क. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद ऑप्शन नंबर ए. सो इफ 21 डेज में शी कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, शी विल बी वर्किंग 3/21, यानी कि 1/7 वर्क डन होगा. वर्क डन बाय रक्षिता विल बी 1/7, एंड इफ वर्क डन बाय रक्षिता इज 1/7, then work done by Rakshita as well as Rahul plus Gurmeet in 6 days will be how much? 6/7. तो 6 days में they are working 6/7, तो 1 day में करेंगे 1/7, तो 7 days में they will complete the work. This implies that 7 days में they will be completing the work. क्या ये बात क्लियर है? बिकॉज 6 days में कर रहे हैं 6/7, 7 days में कर देंगे कंप्लीट वर्क. बट क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी कह रहा है that they must be taking more than 7 days. तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. जैसे हमने 21 एज्यूम किया वर्क डन बाय रक्षिता इन 21 डेज, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारा, बिकॉज एक्चुअल कंडीशन इज सेइंग दैट राहुल, रक्षिता एंड गुरमीत शुड बी टेकिंग मोर देन 7 डेज, बट यहां पे एक्चुअल में 7 डेज में वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं, यानी कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो दिस कैन नॉट बी द वैल्यू. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, बिकॉज दिस कैन नॉट बी द वैल्यू. और हमें वही फाइंड आउट करना था कि विच कैन नॉट बी द वैल्यू. तो सिंस दिस कैन नॉट बी द वैल्यू, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी को भी एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं. तो ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी हमारे क्या कह रहा है, 16 डेज में रक्षिता कंप्लीट वर्क. तो अगर रक्षिता 16 डेज में वर्क कंप्लीट कर रही है तो 3 डेज में कितना करेगी? 3/16. 3/16 वर्क इज कंप्लीटेड बाय रक्षिता इन 3 डेज. तो राहुल प्लस रक्षिता प्लस गुरमीत विल बी कंप्लीटिंग रिमेनिंग वर्क विच इज 13/16. सो 13/16 वर्क दे आर कंप्लीटिंग इन 6 डेज. तो 6 डेज में अगर करें 13/16, टोटल वर्क कितना टाइम में करेंगे? टोटल वर्क करेंगे 16/13 इंटू 6, यानी कि 96/13 डेज में, विच इज ग्रेटर देन 7. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, isn't it so? तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? रक्षिता इज कंप्लीटिंग 3/16 वर्क इन 3 डेज. 3 डेज में कर रही है 3/16, 1 डे में करेगी 1/16, और यहां पे टोटल 6 डेज का वर्क हो रहा है, और रक्षिता भी तो वर्क कर रही है, बिकॉज अल्टीमेटली सेकंड कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ राहुल और गुरमीत है, तो रक्षिता के वर्क को हमें सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो बेसिकली 6 डेज का वर्क ऑफ राहुल प्लस गुरमीत प्लस 6 डेज का वर्क ऑफ रक्षिता, दैट इज 13/16. और 1 डे का वर्क ऑफ रक्षिता कितना है? 1/16, तो 6 डेज का हो जाएगा 6/16. तो 6 डेज का वर्क ऑफ राहुल प्लस गुरमीत प्लस 6 डेज का वर्क ऑफ रक्षिता, दैट इज इक्वल टू 13/16. तो 6 डेज में राहुल प्लस गुरमीत कितना वर्क कर रहे हैं? 7/16 वर्क कर रहे हैं इन 6 डेज. 6 डेज में कर रहे हैं 7/16, और अगर 6 डेज में कर रहे हैं 7/16, तो वर्क डन बाई राहुल प्लस राहुल और गुरमीत को टोटल टाइम कितना लगेगा? दैट विल बी 16/7 इंटू 6, 96/7, विच इज रफली 13 पॉइंट समथिंग, विच इज लेस देन 15. तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि सी कैन बी द आंसर, दिस कैन बी द आंसर. इज दैट क्लियर? तो अगर पहले 16 को चेक किया होता तो ये तो पॉसिबल था आंसर, 21 आंसर हो जाता. ओके, अगर पहले तुम 16 को चेक करते तो 16 इज पॉसिबल, एंड वी नो कि 16 और 21 से कोई एक आंसर ऑप्शन होगा, तो फिर 21 को चेक नहीं करना है, स्ट्रेट अवे मार्क कर देना है, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली नॉट बी द आंसर.
आई मीन डेफिनेटली नॉट बी द वैल्यू दैट कैन सेटिस्फाई द कंडीशंस. ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने का मेथड भी देख लेते हैं. ठीक है, अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाओ, बट एक बार सीख लेते हैं वो मेथड भी कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को अननोन एज्यूम करके. ओके, सो सिंस वी नो कि इन बोथ दीज कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या कह रहा है कि राहुल प्लस रक्षिता प्लस गुरमीत आर टेकिंग मोर देन 7 days. मोर देन 7 days, सो दैट ऑल्सो इंप्लाइज कि 7 days का वर्क ऑफ राहुल प्लस रक्षिता प्लस गुरमीत विल बी लेस देन द टोटल वर्क, क्योंकि 7 days में जो वर्क करेंगे अगर वो कम होगा तभी तो 7 days से ज्यादा लग रहे हैं उनको. सिमिलरली सेकंड केस में राहुल एंड गुरमीत आर टेकिंग लेस देन 15 days, तो अगर 15 days वर्क करेंगे राहुल और गुरमीत तो दैट विल बी मोर देन द वर्क दैट इज नीडेड टू बी डन. ये दो कंडीशन है हमारी. और सिंस राहुल और गुरमीत को हम एक पेयर मान सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का जो कंडीशंस है वो दो साथ में ही आ रहे हैं. रक्षिता को सेपरेट रखना है. ओके, सो लेट अस अज्यूम कि वर्क डन बाय राहुल प्लस गुरमीत दिस इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ राहुल प्लस गुरमीत ऑफ 1 day दैट इज एक्स, एंड एफिशिएंसी ऑफ रक्षिता इज वाई. राहुल प्लस गुरमीत की एफिशिएंसी एक्स है और रक्षिता की एफिशिएंसी है वाई. तो फर्स्ट कंडीशन हमारा कह रहा है दैट राहुल, रक्षिता एंड गुरमीत विल बी टेकिंग मोर देन 7 days का टाइम. तो 7 days का जो वर्क होगा ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी 7 days का वर्क ऑफ एक्स प्लस वाई, 7 into x plus y, that should be less than the work. Total work will be greater than this value. Because 7 days का वर्क से काम चलेगा नहीं, इससे ज्यादा वर्क चाहिए. और सेकंड कंडीशन है कि राहुल एंड गुरमीत आर टेकिंग लेस देन 15 days, तो 15 days का वर्क ऑफ राहुल एंड गुरमीत यानी 15x, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द वर्क. क्या ये इक्वेशंस क्लियर है? ठीक है, और एक्चुअल वर्क क्या है हमारा, दैट इज ऑल्सो गिवन. सो एक्चुअल वर्क इज 6 days all of them working plus 3 days रक्षिता only working. तो 6 days में all of them working will be 6 into x plus y plus 3y. This is our actual work. क्या है क्लियर है? ठीक है, अब फर्स्ट इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं. सो वर्क इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड वर्क इज ग्रेटर देन 7 into x plus y, तो 6 into x plus y plus 3y, this is greater than 7 into x plus y. So 3y will be greater than x plus y. 7 into x plus y minus 6 into x plus y. 3y is greater than x plus y. So 2y is greater than x. 2y is greater than x. क्या ये पार्ट क्लियर है? 2y is greater than x. अब इसको हम फर्स्ट अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वर्क की, इस पे पुट करते हैं. बट थिंक अबाउट इट, वर्क हमारा है 6 into x plus y plus 3y और 2y is greater than x. हमें क्या चाहिए? अल्टीमेटली हमारा आंसर होना चाहिए, हमें रक्षिता के लिए आंसर निकालना है कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि y के लिए रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी रेंज फॉर y. तो हम x को भी y से ही रिप्लेस करेंगे. ओके, x को भी y से रिप्लेस करेंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन में जो हमारा x है वहां पे हम y को रिप्लेस करेंगे. तो वर्क हमारा आ रहा है इक्वल टू 6x plus 6y plus 3y यानी 9y plus 6x. सो 2y is greater than x. सो x को हम रिप्लेस करेंगे 2y से, और 2y x से बड़ा वैल्यू है. 2y is larger than x. 2y x से बड़ा वैल्यू है, तो जब x को रिप्लेस करोगे तुम 2y से, देन डेफिनेटली जो है वैल्यू मिलेगा यानी 9y प्लस 6 into 2y, यानी कि दिस इज 21y. इजंट इट सो? बट जो 21y वैल्यू मिला है ये वर्क से बड़ा वैल्यू होगा बिकॉज 2y इज मोर देन x. इजंट इट सो? तो w से बड़ा वैल्यू होगा. क्या ये क्लियर है? सो w इज डेफिनेटली लेस देन 21y. एक सेकेंड, ये तो वर्क हमारा 21y ही आया था. वी कैन सेपरेटली राइट दैट w इज लेस देन 21y, दिस वैल्यू. सो दैट इंप्लाइज दैट 21 days का वर्क ऑफ रक्षिता इज मोर देन द वर्क. इजंट इट सो? उससे कम हमें वर्क चाहिए, यानी कि 21 कैन नॉट बी द आंसर. सो दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय रक्षिता. सो दैट विल डेफिनेटली बी द आंसर. कैन नॉट बी द आंसर क्यों बोल रहा हूं? आंसर तो 21 नहीं होगा, बट दैट कैन नॉट बी द वैल्यू. और हमें यही फाइंड आउट करना था कि व्हाट कैन नॉट बी द वैल्यू. तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं सो दैट हम पूरा एक रेंज हमें पता चल जाए. सेकंड कंडीशन, तो वर्क हमारा है 6 यानी कि 9y plus 6x, and in as per second condition work is less than 15x. This is less than 15x, so 9y is less than 9x, so y will be less than x. 2y is greater than x but y is less than x. ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करेंगे इन द वर्क वाला कंडीशन.
तो क्या आ जाएगा हमारा, y को लेस देन x है तो x की जगह y पुट करोगे तो x से y हमारा क्या है, छोटा है, x इज लार्जर वैल्यू, यानी कि राहुल और रक्षिता का वनडे का वर्क, राहुल और गुरमीत का वनडे का वर्क इज मोर देन रक्षिता का वनडे का वर्क, y इज लेस देन x, तो x को जैसे ही y से रिप्लेस करोगे तो वैल्यू हमारा छोटा हो जाएगा, यानी इन दैट केस वर्क विल बी ग्रेटर देन 9y प्लस 6y, यानी कि वर्क विल बी ग्रेटर देन 15y और 15 डेज का वर्क ऑफ y, तो 15 डेज में जो वर्क डन बाई रक्षिता होगा दैट विल बी लेस देन द एक्चुअल वर्क, 21 डेज का वर्क विल बी मोर देन द एक्चुअल वर्क, यानी कि टाइम टेकन बाय रक्षिता विल बी बिटवीन 15 एंड 21, so any value between 15 and 21 is allowed, यानी कि all these other values are allowed, so they cannot be the answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, so this will be the proper solution, और बाकी करने के लिए तो एग्जाम में ऑप्शन से कर ही लोगे, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Gautam and Suhani working together can finish a job in 20 days. If Gautam does only 60% of his usual work on a day, Suhani must do 150% of the usual work on that day to exactly make up for it. Then the number of days required by the faster worker to complete the job working alone क्या होगा? तो 20 days में they can finish the work together. तो अगर गौतम का वर्क है G, सुहानी का वर्क है 20 into G plus S, this will be total work. And in the second condition, Gautam does only 60% of his usual work. So work done by Gautam in a day is 0.6 G, and Suhani must do 150% of the usual work, यानी कि 1.5 times work of Suhani. ओके और अभी भी कितना टाइम लग रहा है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली वर्क ऑन दैट डे टू एग्जैक्टली मेकअप फॉर इट. ओके, यानी कि अभी भी इनको नंबर ऑफ डेज 20 ही लग रहे हैं बोथ केसेस में. तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, सो G प्लस S इज इक्वल टू 0.6 G प्लस 1.5 S, सो 0.4 G दिस इज इक्वल टू 0.5 S, यानी कि गौतम और सुहानी का एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 5/4. And then question is asking number of days required by the faster worker to complete the job working alone. Faster worker कौन है, गौतम है, गौतम इज द फास्टर वर्कर, तो टाइम टेकन बाय गौतम कितना होगा, वर्क हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क विल बी 20 इंटू गौतम का एफिशिएंसी प्लस सुहानी का एफिशिएंसी 20 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई फास्टर वर्कर इज गौतम, तो डिवाइड बाई 5, तो 4 इंटू 9 36 days will be the answer. Is that clear? 36 days will be our answer. Okay. Next question करते हैं. Working alone, time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5:8:10. Time का वैल्यू हमें given है for Anu, Tanu and Manu 8 am. So time taken is 5, 8 and 10. Time का रेशियो है. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. एक सेकंड, तो टाइम का रेशियो है 5:8:10. सो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो इनका 5, 8 और 10 का, एलसीएम आ जाएगा 40, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा हमारा 40/5 which is 8 for Anu, 40/8 which is 5 for Tanu and 40/10 4 for Manu. So this is efficiency का रेशियो 8:5:4. So in 4 days they can finish a work working together for 8 hours per day. ठीक है, so if they are working 8 hours per day, work क्या होगा, they all are working together, तो 8 + 5 + 14 17 मिनट्स वर्क करेंगे in 1 hour. टोटल 8 hours वर्क कर रहे हैं, तो 17 into 8 and 4 days में वर्क कंप्लीट हो रहा है into 4. This will be total work. Efficiency multiplied by number of hours multiplied by number of days. This is total work. However, Anu and Tanu work together for first 6 days working 6 hours 40 minutes per day. Then number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone. क्या होगा? So actual condition में क्या हो रहा है? Anu and Tanu are working for 6 days working 6 hours 40 minutes per day. 6 hours 40 minutes is 6 and 2/3 hours. यानी कि 20/3 hours. तो वर्क डन बाय अनु एंड तनु को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग वर्क को मनु को कंप्लीट करना है. तो टाइम टेकन बाय मनु विल बी इक्वल टू टोटल वर्क इज 17 into 8 into 4 माइनस वर्क डन बाय अनु एंड तनु. अनु की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, 8 है. तनु की एफिशिएंसी है 5. 8 + 5 एफिशिएंसी आ गई 13, यानी कि वर्क डन इन 1 hour विल बी 13 एंड दे आर वर्किंग फॉर 20/3 hours डेली एंड टोटल फॉर 6 days.
this will be work done by them. So remaining work will be this minus this, and that divided by Tanu का efficiency, एक second, number of days taken by Manu. तो Manu का efficiency which is 4, तो divided by 4 कर दोगे. This is 13 into 40, this is 17 into 32. तो 17 into 32 आ जाएगा हमारा 510 plus 34, 544 minus 520 divide by 4. This will be 6 days. 6 hours, sorry, 6 days नहीं, 6 hours में होगा कंप्लीट. 6 hours. This will be the answer. क्या है, क्लियर है? In 6 hours they will be completing the work. Okay, ठीक है. Next question. A group of n people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. Thereafter, 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days by working 10 hours a day. तो value of n क्या होगा? So n people worked 35% of the project they completed. They worked 7 hours per day for 10 days. After that, 10 people left, so remaining people are n minus 10. They completed the remaining work will be 65%. In 14 days, working 10 hours a day. So M1 D1 H1 equal to M2 D2 H2. M1 D1 H1 divided by W1. वर्क को भी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है. सो n पर्सन्स 7 hours डेली 10 days डिवाइडेड बाई 35% उन्होंने वर्क किया है. दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 10 पर्सन्स 10 hours पर डे इंटू 14 days डिवाइड बाई 65. 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 7 2 बचा है यहाँ पे, और दिस विल बी 7, दिस विल बी 13. सो 13 n इज इक्वल टू 14 इंटू n माइनस 10, and hence n will be equal to 140. n will be equal to 140. Option B आंसर आ जाएगा. इजी क्वेश्चन. ओके, क्लियर. नेक्स्ट वन. Bob can finish a job in 40 days if he works alone. Bob can finish a job in 40 days if he works alone. Alex is twice as fast as Bob. Alex is twice as fast as Bob. So if Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole in the same job, तो Alex को टाइम कितना लगेगा? अगर twice as fast है तो टाइम लगेगा हाफ, यानी 20 days में Alex will be completing the work. Isn't it so? And Alex is thrice as fast as Cole in the same job. तो if Alex is thrice as fast as Cole in the same job, तो Cole को टाइम कितना लगेगा? 1/3 लगेगा. सॉरी 1/3 बोलो, 3 times लगेगा. एफिशिएंसी 1/3 होगी, बट टाइम तो 3 times लगेगा. Isn't it so? तो टाइम टेकन बाय कोल विल बी 20 to 3 60 days. भाई बॉब को लगे 40 days. एलेक्स ट्वाइस एज फास्ट है तो एलेक्स को हाफ द टाइम लगेगा, यानी कि 20 days लगेंगे. और एलेक्स थ्राइस एज फास्ट है एज कंपेयर टू कोल, तो एलेक्स का जो टाइम टेकन है दैट विल बी 1/3 ऑफ कोल, यानी कि 20 days एलेक्स का टाइम टेकन है तो कोल का टाइम टेकन हो जाएगा 60. ओके, एफिशिएंसी यहां से निकल आएगी और वर्क भी अस्यूम कर लेंगे. तो वर्क हमारा आ जाएगा एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज व्हिच इज 120. द एफिशिएंसी ऑफ एलेक्स विल बी 6, दैट ऑफ बॉब विल बी 3, दैट ऑफ कोल विल बी 2. Suppose Alex and Bob work together on the first day. Bob and Cole work together on the second day, and Cole and Alex work together on the third day. Alternate work कर रहे हैं. Then they continue the work by repeating this 3-day roster with Alex and Bob working together on the 4th day and so on. Total number of days Alex would have worked when the job gets finished. ठीक है. So day 1 पे who is working? Alex and Bob. Day 2 पे Bob and Cole. Day 3 पे Cole and Alex. And then this continues. So day 1 पे Alex and Bob are working. So work done कितना हो जाएगा? A plus B 9 units. Day 2 पे Bob plus Cole 5 units हो जाएगा. 3 plus 2 5 units. Day 3 पे Cole plus Alex 2 plus 6 8 units हो जाएगा. तो in a 3-day cycle work done कितना है? 9 plus 5 14 plus 8 22 units work done in 3 days. In 3 days. But out of those 3 days, Alex कितने दिन वर्क किया है? Alex has worked on the first day and third day. ठीक है. सो टोटल वर्क कितना है? 120 है. 22 into 5 is 110, which implies that in 5 cycles, which is 15 days, 110 work will be completed. 110 units work will be done.
ओके, एंड आउट ऑफ दिस 15 डेज, क्योंकि 3 डेज में 2 डेज वर्क कर रहा है एलेक्स, तो 10 डेज वर्क किया होगा 15 डेज में. नाउ 16 डे क्या होगा? 16 डे एलेक्स एंड बॉब विल बी वर्किंग. सो एलेक्स का 1 डे का वर्क एडिशनल हो गया और 9 यूनिट्स वर्क होगा, 119 हो गया. अब 1 यूनिट का वर्क ही बचा है जो कि लास्ट डे कंप्लीट होगा 17 डे पे, ओनली 1 यूनिट वर्क. बट 70 डे पे वर्क कर रहे हैं बी और सी, तो 70 डे पे वर्क हमारा कितना होगा? क्योंकि 1 यूनिट ही वर्क करना है, टोटल वर्क हो रहा है 5 यूनिट्स, यानी कि 1/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. 17 डे का 1/5 डे ही लगेगा, टोटल टाइम टेकन विल बी 16 एंड 1/5 डेज. बट क्वेश्चन हमसे टोटल टाइम टेकन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एलेक्स ने कितने दिन वर्क किया. तो एलेक्स हैज वर्कड ओनली 11 डेज, बिकॉज 17th डे पे एलेक्स वाज नॉट वर्किंग. तो 11 डेज विल बी आवर आंसर. 11 विल बी आवर आंसर. क्या ये क्लियर है? ठीक है, 11 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Anu, Vinu and Manu can complete a work alone in 15 days, 12 days and 20 days respectively. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day, while Manu works on alternate days starting from the second day. Number of days needed to complete the work क्या होगा? So Anu, Vinu and Manu are taking 15 days, 12 days and 20 days. So LCM ले लिया, 15, 20 और 12 का 60 आ गया. Efficiency of Anu is 4, of Vinu is 5, of Manu is 3. 4, 5 and 3 are the efficiencies. And Anu works only, Vinu तो daily work कर रही है, तो Vinu plus Anu will be working on the day 1. तो day 1 में वर्क आ जाएगा 5 + 4 9 यूनिट्स. डे 2 पे Vinu तो वर्क करेगी, बट Manu एडिशनली वर्क करेगी साथ में, बिकॉज Anu तो डे 2 में वर्क नहीं करेगी, अल्टरनेट डेज पे वर्क करती है. Vinu प्लस Manu का वर्क आ जाएगा 4 + 5 + 3 7 8, 5 + 3 8 यूनिट्स का वर्क आ जाएगा डे 2 पे. ओके, सो 2 डेज में वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है? 9 + 8 17 यूनिट्स. क्या क्लियर है? 2 डेज में हो रहा है 17, 60 के पास पहुंचना है हमें, 3 साइकिल्स में पहुंच जाएंगे पास तक, तो 2 × 3 6 डेज में वर्क हो जाएगा हमारा 51 यूनिट्स. और फिर 7 डे पे 9 यूनिट्स वर्क होगा, तो 60 यूनिट्स वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन 7 डेज. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. वर्क विल कंप्लीटेड इन 7 डेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Amar, Akbar and Anthony are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. Akbar and Anthony can complete it in 16 months, and Anthony and Amar can complete it in 2 years. If the person who is neither the fastest worker nor the slowest worker works alone, then time and months he will be taking to complete the project क्या होगा? Okay, so Amar and Akbar are taking 1 year, यानी कि 12 months. Akbar and Anthony are taking 16 months, while Anthony and Amar are taking 2 years, which is 24 months. So LCM of these values is 48. The efficiency of Amar and Akbar is 4. Efficiency of Akbar and Anthony is 3, and efficiency of Anthony and Amar is 2. Okay. So total sum कितना आ रहा है हमारा? 4 + 3 + 2 9 आ रहा है. फॉर 2 टाइम्स अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी का एफिशिएंसी, यानी अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है? दैट इज 4.5 आ रहा है. तो अमर प्लस अकबर का एफिशिएंसी 4 है. द एफिशिएंसी ऑफ एंथनी विल बी 0.5. अब एंथनी और अमर का एफिशिएंसी है 2, तो अकबर का एफिशिएंसी आ जाएगा 2.5, और हेंस अमर का एफिशिएंसी आ जाएगा 1.5. सो डेफिनेटली फास्टेस्ट वर्कर कौन है? अकबर. स्लोएस्ट वर्कर इज एंथनी. सो वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय अमर. टाइम टेकन बाय अमर क्या होगा? दैट वी नीड टू फाइंड आउट. Isn't it so? Okay. So time taken by Amar will be equal to, work है 48,
efficiency of Amar is 1.5, 48 by 1.5, 48 by 3 by 2, 32 months will be taken by Amar. Answer will be 32 months only. Okay, clear है? Next question. Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint it in 84 days. Anil starts painting and after 10 days Bimal and Charu join him. Together they complete the painting in 14 more days. If they are paid a total of rupees 21,000 for the job, then share of Charu क्या होगा? Which will be proportionate to work done by him. Okay, so what will be that share? So Anil can complete the work in 60 days. Bimal can do the same in 84 days. Okay. So effectively, question is saying कि अनिल कितने डे वर्क कर रहा है? 10 days कर रहा है पहले इनिशियली alone. Then Anil, Bimal and Charu complete the work in 14 days. So as such, Anil is working total 24 days. Bimal is working total 14 days. So if Anil can complete the work in 60 days, तो 24 days में कितना वर्क करेगा? 24 by 60 और 2 by 5 वर्क करेगा, which is 40% work. Similarly, Bimal is working for 14 days. 84 days में टोटल वर्क कंप्लीट करता है, तो 14 डेज में कितना करेगा? 14 by 84, which is 1 by 6. तो 1 by 6 वर्क करेगा. ऐसा इट इज? क्या है? पार्ट क्लियर है? 2 by 5 वर्क किया है अनिल ने, 1 by 6 वर्क किया है बिमल ने. तो कितना वर्क बचा फॉर चारू? कंप्लीट वर्क माइनस 2 by 5 plus 1 by 6. So this will be 12 plus 5, 17 by 30. So 13 by 30 work is done by Charu. So payment will be 13 by 30 into 21,000. 13 का मल्टीपल होगा आंसर. आंसर विल बी ऑप्शन ए. और वैसे भी इजी कैलकुलेशन है, ठीक है. सो यस, कितना आ रहा है? 700 into 13, 9100, ऑप्शन ए. ओके, क्लियर है? तो ऐसे कर सकते थे या फिर तुम वैल्यू वर्क की एज्यूम कर लेते, एलसीएम मान लेते 420. तो 7 इज एफिशिएंसी फॉर ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा हमारा 6. तो वर्क डन बाई ए विल बी 24 into 7. वर्क डन बाई बी विल बी 14 into 7 एंड अकॉर्डिंगली सी का जो बचा हुआ वर्क है वो हो जाएगा. क्या है? क्लियर है? ठीक है. Next question. Two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank while pipe B drains it. Pipe A fill कर रहा है while pipe B is draining it. Okay. Pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m. Then the tank becomes full at 10 p.m. तो pipe A ने कितने टाइम वर्क किया है? 8 hours के लिए. Pipe B is working for 7 hours. तो 8 hours का वर्क हो pipe A, 8A plus 7 hours का वर्क हो pipe B. This is total work. पाइप बी नेगेटिव वर्क कर रहा है बट दैट इज फाइन. 8A plus 7B इज टोटल वर्क. ठीक है. सेकंड केस में क्या हो रहा है? पाइप A इज ओपन एट 2 p.m. एंड पाइप B इज ओपन एट 4 p.m. देन टैंक बिकम्स फुल एट 6 p.m. यानी कि पाइप A वर्क्स फॉर 4 hours एंड पाइप B वर्क्स फॉर 2 hours. तो देन ऑल्सो द वर्क इज कंप्लीटेड. सो दीज टू आर इक्वल. These two values are equal. So 8A minus 4A is 4A is equal to minus 5B. So A और B का एफिशिएंसी यहां से आ जाएगा. And since we know कि B का एफिशिएंसी नेगेटिव है, this is minus 5 by 4 but 5 by minus 4 होगा because B का एफिशिएंसी नेगेटिव है, A का पॉजिटिव है. Is that clear? कि A और B का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 5 and minus 4. तो एफिशिएंसी ऑफ A is 5, that of B is minus 4. टोटल वर्क हमारा किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो. सो 4A 4 into 5 plus 2 into minus 4. टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 20 minus 8, 12 units. 12 units is total work. और क्वेश्चन पूछ रहा है पाइप B is not opened at all. टाइम टेकन बाई A to fill the tank कितना होगा? तो टाइम टेकन बाई A will be 12 divided by efficiency of A which is 5. 12 by 5 which will be 2 and 2 by 5 hours.
2 and 2 by 5 hours, यानी कि 120 plus 24, 144 minutes. Option C will be the answer. 144 minutes. Okay. ठीक है. Next question. One day, Rahul started a work at 9 a.m. and Gautam joined him 2 hours later. Then they worked together and completed the work at 5 p.m. the same day. तो 9 a.m. पे राहुल ने वर्क स्टार्ट किया, गौतम ने 2 आवर्स के बाद में ज्वाइन किया, यानी कि राहुल ने कितने आवर्स वर्क किया 9 a.m. से 5 p.m. तक, 8 आवर्स के लिए. So 8 hours का वर्क ऑफ राहुल प्लस 6 hours का वर्क ऑफ गौतम, बिकॉज गौतम ज्वाइन 2 hours later. That is total work. And if both had started at 9 a.m. and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. Which implies कि 7.5 hours of work complete हो गया होता. This is also equal to 7.5 hours of work of Rahul plus Gautam. So 8 hour minus 7.5 hour, 0.5 hour is equal to 1.5 G. तो राहुल और गौतम के वर्क का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 15 by 5, 1.5 by 0.5 या फिर 15 by 5 या फिर 3 by 1. The efficiency of Rahul will be 3, that of Gautam will be 1. तो क्वेश्चन आस्किंग वर्किंग अलोन टाइम टेकन बाय राहुल क्या होगा. सो वर्क किसी भी एक कंडीशन में पुट करके निकाल लो. ठीक है. सो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 7.5 into 3 plus 1 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ राहुल विच इज 3. So 7.5 into 4 is 30. 30 by 3 is 10. So 10 hours में Rahul would have completed the work. Option A will be the answer. Straightforward question. Okay. ठीक है. Next question. Anil can paint a house in 12 days while Barun can paint it in 16 days. Anil can paint a house in 12 days while Barun can do the same in 16 days. Anil, Barun and Chandu undertake to paint the house for rupees 24,000 and 3 of them together complete the painting in 6 days. 6 days when they are completed the painting. So if Chandu is paid in proportion to the work done by him, then amount in INR received by him क्या होगा? What will be amount in INR received by him? तो 6 days में वर्क डन बाय अनिल कितना होगा? 6 by 12. वर्क डन बाय विमल कितना होगा? 6 by 16. 6 by 12 इज बेसिकली 1 by 2. 1 by 2 वर्क हुआ 50%. ठीक है. और 6 by 16 इज 3 by 8. 1 by 2 और 4 by 8. तो 4 by 8 वर्क किया है अनिल ने, 3 by 8 वर्क किया है विमल ने, बचा हुआ वर्क कितना हुआ 1 by 8. सो 1 by 8 दैट रिमेनिंग वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय चंदू, बिकॉज चंदू की एफिशिएंसी तो हमें पता नहीं है कितने डेज में वर्क कंप्लीट करता है, ये भी पता नहीं था. तो चंदू 1 by 8 वर्क कंप्लीट करता है, 1 by 8 वर्क करता है इन टोटल. तो 1 by 8 वर्क करता है तो अकॉर्डिंगली ही विल बी पेड. तो हिज पेमेंट विल बी 1 by 8 into 24,000 and has 3,000 rupees. पेमेंट ऑफ चंदू विल बी 3,000 रुपीज. क्या है, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक सेकेंड. John takes twice as much time as Jack to finish the job. John takes twice as much time as Jack to finish the job. Jack and Jim together take 1/3 of the time to finish the job that John takes working alone. Moreover, in order to finish the job, John takes 3 days more time than that taken by all of three taken together, working together. In how many days will Jim finish the job working alone? Okay, that is the question. अब जॉन, जैक, जिम सारे के सारे जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहां से एंड हो रहे हैं उससे कर लेते हैं NKM. ठीक है. सो जॉन, जैक एंड जिम. ओके. सो जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश अ जॉब. द टाइम टेकन बाय जॉन इज डबल एज कंपेयर टू जैक टू फिनिश जॉब. 2:1 का रेशियो है टाइम का. तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 का बिटवीन जॉन एंड जैक. जैक एंड जिम टुगेदर take 1/3 of the time to finish job than John takes alone. ठीक है. तो जॉन का टाइम टेकन अगर 3 यूनिट्स है, दैट टेकन बाई जैक एंड जिम इज 1 यूनिट. टाइम का रेशियो 3:1 है. एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा. 1:3 होगा. Isn't it so? और अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 है, यानी कि जॉन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है. और फर्स्ट कंडीशन में जॉन की एफिशिएंसी मैंने 1 ही एज्यूम किया है, तो जैक और जिम की एफिशिएंसी टोटल आ जाएगी 3. जैक की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि जिम की एफिशिएंसी 1 ही होगी. इज दैट क्लियर? 1:2:1 एफिशिएंसी की वैल्यूज आ गई. क्वेश्चन इज सेइंग मोर ओवर इन ऑर्डर टू फिनिश द जॉब
John takes 3 days more than that taken by 3 of them working together. John takes 3 days more than all of them working together. So if all of them are working together, John plus Jack plus Jim, and instead in comparison only John working. So time taken क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल टाइम एफिशिएंसी हमारी 4 है, एफिशिएंसी ऑफ जॉन इज ओनली 1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:1, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा 1:4, यानी टाइम टेकन बाई जॉन विल बी 3 यूनिट्स मोर. और क्वेश्चन ये तो कह रहा है 3 days मोर, यानी कि 3 units इज इक्वल टू 3 days. सो 1 unit इज इक्वल टू 1 day. सो इन हाउ मेनी डेज विल जिम फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन, दैट इज द क्वेश्चन. जिम के लिए पूछ रहा है, ठीक है. सो यानी कि यहाँ पे तो वैल्यूज हमें क्लियर हो गई सारी की सारी, ठीक है, कि 1 days में दे कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर. टोटल वर्क कितना हो गया फिर हमारा, एफिशिएंसी 4 है, और 1 day में बिकॉज 1 unit इज इक्वल टू 1 days, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 4 units. 4 into 1 यानी कि 4 units. टाइम टेकन बाय जिम विल बी इक्वल टू 4 units वर्क है. जिम की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 4/1, 4 days ही टाइम लगेगा जिम को भी, जितना टाइम लगा है जॉन को वही सेम टाइम जिम को भी लगेगा. 4 days विल बी द आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A contractor agreed to construct a 6-kilometer road in 200 days. He employed 140 persons for the work. But after 60 days, he realized that only 1.5 kilometer work has been completed, road has been completed. How many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on time? कितने additional लोग लगेंगे? तो 6 kilometer work was to be completed in 200 days. But 140 persons in 60 days have completed only 1.5 kilometer. M1 D1 H1 by W1, that will be बेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है. सो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 140 है, तो 140 हैव वर्कड फॉर 60 days एंड हैव कंप्लीटेड ओनली 1.5 किलोमीटर रोड. नाउ लेट अस से ही नीड्स n एक्स्ट्रा पीपल. सो 140 प्लस n टोटल हो जाएंगे. नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग कितने हैं, 140 डिवाइडेड बाई रोड रिमेनिंग है 4.5 किलोमीटर का, क्योंकि टोटल 6 किलोमीटर था. 3 टाइम्स जाएगा, 140 से 140 कैंसिल आउट हो गया. सो 140 प्लस n इज 60 into 3 180. सो n इज इक्वल टू 40. नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन नीडेड विल बी इक्वल टू 40 इन दिस केस. क्या ये क्लियर है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन नीडेड विल बी इक्वल टू 40. ओके, क्लियर है. सो इतना रखते हैं सेशन में, और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको कि हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. आई बिलीव जो भी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया वो समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन का अगर डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स एज वेल कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, ठीक है. आई बिलीव सारे क्वेश्चन समझ में आओगे, और दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.